My greetings to respected Principal Ma'am, intellectual of repute, Ms. Rapti Mishra, supportive colleagues, and the young brigade of Arya College, our dear students. It is a pleasure to welcome you all today as we celebrate 71 years of the adoption of our Constitution. 26 November is a landmark day on our national calendar, as on this day in 1949, our founding fathers subscribed to the constitutional document. To commemorate this day in a befitting manner, the Department of Political Science, in collaboration with IQAC, has organized a series of activities like digital poster making competition on fundamental duties, an extension lecture on Constitution and right to property, and a Kartavya Samvad with the staff to enhance awareness about the Constitution. As we cross the 71st milestone of India's democratic journey, let us grab this opportunity to salute the makers of the Constitution who provided us a timeless guide for good governance. May I now request our worthy Principal Ma'am to inaugurate the proceedings of the day. Our Principal Ma'am, Dr. Savita Uppal ji. Thank you, Mamta ji. It's a matter of great pride for me to be a part of this deliberation being organized to mark the Constitution Day. This day is a commendable initiative to reiterate our gratitude towards the architects of our Constitution. With their sheer wisdom, prudence, foresight, and diligence, they prepared a futuristic and a vibrant document that reflects our ideals and aspirations. As we commemorate the adoption of Indian Constitution, it is praiseworthy that the Department of Political Science has made an effort to devote this day to generate awareness regarding this sacred document. On this occasion, on behalf of college management, staff and students, I extend a warm welcome to Ms. Rapti Mishra, Assistant Professor, Shyam Lal College, Delhi, who has graciously accepted our request to deliver an interesting discourse on Constitution and right to property. I'm sure our students will gain some valuable inputs from this erudite scholar.
It has come to my knowledge that our students have also enthusiastically associated themselves with the event by sending their entries in digital poster making contest on fundamental duties. I appreciate their efforts and expect a similar response from them in future too. Let's observe this day in true spirit and resolve that we, the people of India, will continuously strive to achieve the ideals of our constitution. Jai Hind. Over to you, Rapti ji. Thank you, Principal Ma'am. Respected Principal Ma'am, Dr. Savita Uppal ji, Organizing Secretary, Dr. Mamta Kohli ji, members of the Organizing Committee, Mr. Rohit Sharma and Ms. Charu Sharma, and all the respected members of IQAC. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude for having me here on this auspicious occasion of Constitution Day. As Ma'am has explained the importance of this day, I'm extremely delighted to deliver a lecture to all the students here. I would also like to congratulate Principal Ma'am Dr. Uppal for successfully organizing such an event like this, which not only reminds our students about the legacy of our leaders, but also their struggle. Ma'am, under your leadership, I'm sure that this institution would reach newer heights. Congratulations, ma'am. I'm overwhelmed by such a generous introduction by Dr. Kohli and Principal Ma'am. I'm thankful to the organizing team, especially Mr. Rohit Sharma, for such a smooth coordination. I must admit here that Rohit is a very old friend of mine, and our friendship dates back to the JNU days. I always found him very enthusiastic and high-spirited individual, seeking always for knowledge. So when he called up for this lecture, I could not deny. Thank you, Rohit. Now, let me begin with the presentation which I prepared for the student, and I'll be switching on to the both language. I'll be talking bilingually so that I can reach out to the students in a more legible manner. Shall we begin? I'll be sharing my screen now. So I'll be talking on Indian Constitution and the right to property, from fundamental to legal. भारत के संविधान के बारे में मैं आज बात करूंगी आप लोगों से, और दिस इज अ पिक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पर मेजर डिबेट्स हुए थे हर एक आइटम्स पे जो भी टेक अप किए गए थे, एंड जहां पे सारे डिसीजंस लिए गए थे, और हमारी जो लॉ बुक है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रेडी बाय द स्टालवर्ट लीडर्स. So I'll begin by introducing you to the very idea of constitution. संविधान क्या है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही अपने कोर्स में पढ़ा होगा एरिस्टोटल के बारे में, और एरिस्टोटल का एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है उसमें पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर नेचर ऑफ स्टेट को डिफाइन किया था. यू नो दैट? आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. Constitution is basically, it's a rule book of a nation, and it also not only reflects the nature of the state, also the spirit of the state, and the kind of organization it has made, the kind of organizational arrangement which it has made for its different kind of constitutional setup. So constitution refers to a body of doctrine and practice. If I go by any particular definition, I'll take up the definition of Robert M. McIver and his famous book. In his famous book, Web of Government, 1965, he says that ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक फैमिली की तरह के साथ जो है कंपेयर करते हैं. कहते हैं जिस तरीके से फैमिली के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फैमिली इज बेसिकली अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट. सो द गवर्नमेंट जो है उसी तरीके से जस्ट लाइक फैमिली इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलती है और बनती है. एंड इट आल्सो, माइंड यू, इट आल्सो डिफाइंस द वेरी स्पिरिट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. what nature of state is all about is represented by the constitution of that particular state. So moving on to the next slide. Another definition by Wade and Philip, 1970. It's basically what does it say?
It declares the principle of governing operation of those organizations. Means Wade and Phillips जो है वो organizing principles के बारे में बात करते हैं organs of the government के, ठीक है? तो the basically focuses on what are the principles which lead to organizing the organs and different institutions of a particular state. So ये आपका एक है. There are different types of institution or in a written and unwritten form. और हमारा जो पूरा जो मानव इतिहास है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेट्स और उनकी अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को काफी डिस्कस करते हैं. और इससे जो बेसिक जो निकल के आता है वो है कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. लाइक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का जो संविधान है जो है लिखित है. और मैं बताना चाहूंगी कि ये दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ संविधान दस्तावेज है. दुनिया इट्स द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है. और कुछ और लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ एक ही डॉक्यूमेंट है which represent the entire principles and philosophy of our country. Okay. There are constitution जहाँ पर जैसे कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है. मतलब दे आर रिटन बट डिफरेंट लेजिस्लेशन हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन की वजह से वो अलग अलग किताबों में पाए गए. किसी एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में जैसे कि भारत का संविधान में नहीं है. अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को वो रेफर करते हैं जब भी उन्हें कोई लीगल प्रोसीजर से गुजरना होता है. अब एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन you can find in there's a disturbance. I'm so sorry, there's a disturbance. Can you please mute? Yeah. So I'll be talking about the British government. The British government does not have any royal constitution, and because तो British जो government का जो संविधान है वो कहीं लिखित रूप में नहीं है, ठीक है. और ये जो है उनके इस संविधान को हम अलग अलग जो है लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पाएंगे. इट इज नॉट रिटन पर्टिकुलरली बट दे रेफर टू सेवरल डॉक्यूमेंट्स like Magna Carta 2015, Petition of Rights of 1628, Bill of Rights 1689, Act of Settlement 1701 and certain special parliamentary acts. वो जब भी कोई स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट पास करते हैं तो उसे भी एक तरीके से जो है मान लेते हैं कि एक टाइप ऑफ जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. This is the masterpiece of a document and I consider it as a masterpiece because इस पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है माना जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, सबसे वाइडली डिस्कस्ड डॉक्यूमेंट है और सबसे बड़े क्योंकि हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड भी हैं. और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मिरर इमेज है वो किस में पाया जाता है? प्रियम्बल में. अब प्रियम्बल क्या है? अब प्रियम्बल की स्पिरिट क्या है? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आई एम टोल्ड दैट आई जस्ट हैव 30 मिनट्स सो आई जस्ट रश. प्रियम्बल को मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो इट्स बेसिकली टॉक अबाउट व्हाट आर द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कंट्री. वी आर बेसिकली अ सोवरेन, internally supreme, externally independent state, socialist, equitable distribution of resources. We believe in samajwad, sovereign, samprabhutva, secular. We do not have any state religion, democratic, loktantric republic, where the president is the head of the state and executive head is the prime minister. और यहाँ के जितने भी हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो नागरिक हैं, हमें जस्टिस, हमें फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन है. हम एंडीवर करते हैं कि हम सब समान रहें इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. मतलब कि हमारी जो स्टेटस है वो भी बराबरी पे हम अचीव कर पाए, कोशिश रहती है हमारे संविधान की, और इसके लिए हम लॉ बनाते हैं. अब ये याद रखना कि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, तो जो सबसे कंटेंटियस इशू था वो इसी लिबर्टी और इक्वालिटी को लेके था. आर्टिकल 14 एंड 19 जो कि बार बार जो है आपस में ही टकरा रहे थे विद द राइट ऑफ
राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सो और हम भाईचारा की भी बात करते हैं अपने प्रियम्बल में। सो मूविंग अहेड, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो वो HR खन्ना बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाईएस्ट स्टेट क्राफ्ट. It is a reflection that people who have written this constitution or made this constitution are the men of vision, and they cannot forget the grassroots. मतलब कि ये संविधान जो है वो हमारे देश के आखिरी व्यक्ति के लिए, जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, उसके लिए भी है. It is equally applied to each and every citizen of this country, or it takes into its purview everyone, every citizen of this country. And the second is that it has to be a living it's like a living organism. मतलब कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजिंग टाइम के साथ अडेप्ट करता है तभी वो सर्वाइव भी कर पाता है, वैसे हमारा जो संविधान की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो ये है कि हम चेंजिंग टाइम के साथ जो है अपने संविधान को एक फ्लेक्सिबल रूप दिया हुआ है कि जैसे जैसे जरूरत महसूस होगी हम अपने संविधान को उस हिसाब से चेंज कर पाएंगे सक्सीडिंग जनरेशन में, ताकि वो हम एडजस्ट कर पाए. तो इसीलिए हमारा संविधान जो है बहुत ही लचीला है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और इसे एक्सपैंड कर सके इन फ्यूचर. एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक बहुत ही बराबरी का समाज के बारे में बात करते हैं, और एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं जो कि नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा चले और ना कि किसी इंडिविजुअल या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के विम्स और फैंसीज के हिसाब से. यानी कि इट्स एन ऑब्जेक्टिव लॉ, इट इज नॉट which is equally applied to everyone, and it is not the representation of a particular women fancy of a particular leader. So in personification जो है यहाँ पर ये reflect करता है philosophy of our constitution में. हमारा जो है constitution, it calls out for separation of power, judiciary, executive and legislature, और ये जो है इट इज बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम. ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको चैलेंज होती हुई नजर आएंगी व्हेन आई विल टॉक अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. और मैंने इसलिए भी बात की है, वो मैं लास्ट में आपको समराइज करूंगी कि यही पर्टिकुलर राइट को मैंने इस लेक्चर में क्यों इंक्लूड किया, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है हमें इसके बारे में जानना. अपार्ट फ्रॉम दिस, एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए, यानी कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ना हो, इसके लिए हमारे संविधान की जो रचयिता थे उन लोगों ने क्या किया कि हमारे संविधान को संविधान में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है उसको मल्टीपल लेयर्स में किया, यानी कि 3 लेयर्स में. फर्स्ट द सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल, एंड द सेकेंड वन इज द स्टेट लेवल, द प्रोविंशियल लेवल आई शुड से, और अफेयर स्कोप विद द लोकल बॉडीज. जो आज की डेट में आप जो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन देखते हैं वो इसीलिए है, यानी कि एक तो ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर पंजाब स्टेट में पंजाब का जो सरकार है वो है, और उसके बाद पंजाबी के उसमें कई सारे पंचायती लेवल पे भी काम जो चलते हैं, ताकि लास्ट पर्सन को भी अपने पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हम एनेबल कर सकें, ठीक है. तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली we enable people to be equal and equally participating. Now I'll be focusing of all things, I'll be focusing on the fundamental rights which is being guaranteed by our Indian constitution. और इसलिए क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं egalitarian society की, हम फ्रीडम की बार बार बात कर रहे हैं, तो जो the best representation जो होता है फंडामेंटल राइट का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है. और जब मैं आपको बता दूं कि जब ये संविधान अडॉप्ट हुआ था तब हमारे पास कुल 7 जो है वो फंडामेंटल राइट्स थे. अब इसको ध्यान से, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मैं इसी पे बार बार आपको समझाऊंगी ताकि आपको याद रहे. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक इट सो दैट वी कैन डिस्कस इट एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है.
डिफरेंट सोर्सेस थे हमारे, जो क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया, ये पॉइंट मैं बता रही हूँ कि हमारा संविधान जो है वो कई सारे और दूसरे संविधानों से इंस्पायर्ड है, और जो फंडामेंटल राइट्स का जो पर्टिकुलर जो प्रोविजन है हमारे देश में, वो इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स से जो है प्रभावित है, यूनाइटेड स्टेट के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है, फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित है, और इसीलिए 6 फंडामेंटल राइट्स है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई हैव आल्सो रिटन द 7th one in red. The first one is right to equality, 14 to 18, right to freedom, article 19 to 22, right to freedom of religion, article 25 to 28, cultural and educational right, 29 to 30, right to constitutional remedy, article 32. So right to property जो था वो उस समय जब हमारे संविधान जब अडॉप्ट हुआ था तो वहां पर था। अब मैंने जैसे कि पहले ही आप लोगों को बताया, इन फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक कांस्टेंट, हमारा एक पास्ट था, हमारा एक इतिहास था, इतिहास एक गुलामी का इतिहास था। तो हम चाहते थे कि जब हम आजाद हों तो हमारे देश में कोई भी गुलाम ना रहे, और ये गुलामी किसी भी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस की वजह से ना हो। और उसको खत्म करने के लिए शुरुआती दौर में जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट की जो स्पिरिट है उसमें जो है स्लाइटली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया जो है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ देखते हैं। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, आपके टीचर्स आपको क्लास में जरूर पढ़ाते होंगे, और ये सब्जेक्ट भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी अर्ज को, हमारे स्टेट के का जो है एक डिजायर कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। तो इसीलिए इस पे मैं दोबारा आऊंगी। 7th जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31, ये बाद में रिमूव कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट 1978। मैं आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताऊंगी, बहुत ही नुआंस्ड और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कंटेंटियस और कॉम्प्लेक्स इश्यूज है हमारे संविधान में। आज भी इसके ऊपर डिबेट्स चलती हैं, इस राइट को रीइंस्टेट करने की बात की जाती है, वो मैं बाद में बताऊंगी उसके बारे में डिटेल आपको, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी हमने, जब हमें चाहिए था कि भाई सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कैसा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों रखा था? क्योंकि हमने जो स्टेट का हमारे जो लीडर्स थे उन लोगों ने सोचा एक मॉडर्न स्टेट है इंडिया, और ये मॉडर्न स्टेट है, तो इसीलिए जो हमें इस राइट टू प्रॉपर्टी को रखना होगा। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है लॉक-इन प्रिंसिपल के हिसाब से जाएंगे तो जॉन लॉक आपको पता है, जिन्होंने प्रॉपर्टी पे एक्सटेंसिवली काम किया है, ठीक है। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? It entails the exclusive right to choose the use of particular resource, the exclusive right to the stream of benefits, cost arising from the resource, and the right of voluntary exchange of the resource. There's a disturbance at the back. There's a disturbance at the back. Yes. So इसका मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताती हूँ। इसमें बेसिकली कहा गया है कि जब मेरे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है उसका यूसेज कैसे करना है, और उसकी जो यूसेज के बाद जो बेनिफिट आता है उसको उस रिसोर्स के द्वारा, और अगर उस बेनिफिट को मैं किस तरीके से लोगों के साथ एक्सचेंज करती हूँ, उसका राइट जो है वो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है, और इसीलिए आप सभी लोग जब इंग्लैंड के प्रॉपर्टी राइट्स को देखोगे या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रॉपर्टी राइट्स को देखोगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी राइट्स। हमारा जो है वो काफी प्रॉब्लमैटिक रहा है हमेशा से, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर इश्यूज, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है तो उसमें मैं एप्पल उगाना चाहती हूँ कि संतरे उगाना चाहती हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उस एप्पल और संतरे को मैं बाजार में बेचूंगी या खुद के लिए रखूंगी, ये मुझ पे डिपेंड करता है। और उससे जो बेनिफिट होगा, या फिर उसे नहीं कहीं पे, या मैं रेंट पे लगा दूंगी, या फिर उस प्रॉपर्टी का मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, वो सोली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। और इसी को जो है एडम स्मिथ, यहाँ पर मैं एडम स्मिथ की बात ना करूँ राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए तो गलत होगा, क्योंकि एडम स्मिथ ने इन वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है कि जब भी हम एक्सचेंज
करते हैं सोसाइटी में, तो वो इंसेंटिव के तौर पे वो एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मोबाइल आया था पहले नोकिया 1100 था, अब क्योंकि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सीट, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता गया, नोकिया 1100 से एप्पल का फोन आ गया और इस लेवल में इतने सारे कंपटीशन है कि इस फोन की स्पेशलाइजेशन आज इस तरीके की है कि हम फोन पे गूगल मीट कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, है ना। तो इट क्रिएट स्पेशलाइजेशन, एट द सेम टाइम क्रिएट्स व्हाट, वेल्थ फॉर द नेशन। तो मेन आर्गुमेंट एडम स्मिथ का यही था। ओके, अब राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि किस संविधान के किस सेक्शन में था, अब इसके ऊपर डिबेट क्या क्या थे, तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी पे जो डिबेट था वो सबसे लंबा डिबेट था ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद। इट इज रिगार्डेड एज द सेकंड मोस्ट कंटेंटियस इशू एंड द फर्स्ट बीइंग द चॉइस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ग्रानवेल ऑस्टिन ने अपनी किताब में लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 2000, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये सेकंड मोस्ट कंटेंटियस इशू था जो कि डिबेटेड था, ठीक है। क्यों कंटेंटियस था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इट वाज नॉट मैचिंग विद द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो था उससे बार बार टकरा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम किसी की प्रॉपर्टी को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो हम कैसे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आएंगे। तो यानी कि ये जो डुअल गोल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपस में ही टकरा रहे थे, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन किया और बहुत सारा। अब इस डिस्कशन के पार्ट में क्या क्या सवाल थे, इस डिस्कशन में सवाल थे कि हाउ डू वी बैलेंस द राइट टू प्रॉपर्टी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को भी कैसे प्रोटेक्ट करें और सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक और सामाजिक सुधार भी हम अपने देश में कैसे लेकर आए और लोगों की संपत्ति के अधिकार को भी कैसे सुरक्षित रखें, ठीक है। पब्लिक पर्पस, यानी कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी में एक क्लॉज ऐसा है कि आप सरकार जो है जमीन अधिग्रहण तभी कर सकती है जब लेजिस्लेचर एक लॉ बना दे, और जब वो लॉ बन जाएगा तभी उसके अंतर्गत जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पर्पस, जो स्क्रीन में आपको रेड में पब्लिक पर्पस दिखाई दे रहा है वही ये पब्लिक पर्पस है, ठीक है। कि अगर वो हमारे देश के किसी काम में आ रहा है, जैसे कि रोड बनाना या डैम्स बिल्ड करना ताकि वो हमारे देश में डेवलपमेंट के काम हो सके, तो पब्लिक पर्पस ऐसे। मगर ये पब्लिक पर्पस डिफिनेशन ही अपने आप में प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक पर्पस, आप देखोगे आगे की डिबेट्स में कि प्रॉब्लमैटिक किस तरीके से हुआ। तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर, और हम किसी की अगर मान लो सरकार प्रॉपर्टी लेती है फॉर पब्लिक पर्पस, रिमेंबर पब्लिक पर्पस के लिए सरकार एक लॉ बनाएगी और उसी के अंतर्गत वो ले पाएगी किसी की प्रॉपर्टी। तो अगर हम किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो किसी को पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, और व्हाट शुड बी द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट compensation which would be considered as fair, equitable and just। यानी कि किसी की मान लो जमीन है दिल्ली में और किसी की जमीन है बिहार में, तो बिहार की जमीन और दिल्ली की जमीन में अगर मार्केट वैल्यू से जाएं तो दिल्ली की जमीन बहुत महंगी है, बिहार की जमीन 4 लाख की पड़ेगी, तो दिल्ली की वही जमीन 2 कट्ठा जमीन जो है वो आपकी 80 लाख रुपए पड़ेगी। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो भी क्लियर नहीं थी कि क्या क्राइटेरिया होगा जो डिफाइन कर पाएगा कि ये सही तरीके से कॉम्पेंसेशन, अच्छा पैसा दिया है या नहीं, सही पैसा दिया है या नहीं। और लास्ट जो डिबेट था वो उसमें ये था कि क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन ये कौन डिसाइड करेगा, हु विल बी द आर्बिटर, ठीक है। तो आगे जो है राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, मैं थोड़ा सा इसको ग्लिम्स में आपको एक एक क्लॉज समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। कीप दिस इन माइंड, ये जो है इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट डू इट, ताकि इसके जो क्लॉज हैं आगे चल के कैसे कंटेंटियस होते हैं वो मैं बताती हूँ। द फर्स्ट थिंग विच इट कंप्राइजेस ऑफ इज आर्टिकल 19(1)(f of the Constitution guarantees to all its citizens the fundamental right to acquire, hold and dispose of property, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये अधिकार है आर्टिकल 19(1)(f के अंतर्गत कि हम जो है प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं या उसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर जो है अपने तक ही रखें, ठीक है।
तो बेच सकते हैं, रख सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं, ये हमारे उसमें था। इसी में 1906 था जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोथ बाय यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो लैंड का इशू था, ये लैंड का ही मेन इशू था जो राइट टू प्रॉपर्टी की में इतना सारा प्रॉब्लम लेकर आया। तो इट वाज इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो कंकरेंट लिस्ट में था, तो इस पे जो लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती थी, यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर भी बना सकती थी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती थी। तो ये लोग जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब वही हुआ ऑन द बेसिस ऑफ, फिर से यहाँ पे आया पब्लिक पर्पस और इंटरेस्ट, यहाँ पर आप ये नोटिस करना, ठीक है। आर्टिकल 31(1) provided that no person shall be deprived of his right to property save by the authority of law, यानी कि right to property in fundamental in part 3 of Indian Constitution, it shall be no person shall be deprived, but इसी में following this एक और clause डाला गया था कि उसी को डिफाइन करते हुए कि it provided that 31(2) याद रखिएगा, it's an important clause, that any state acquisition must only be upon the enactment of valid law for a public purpose, फिर यहाँ public purpose है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी कि पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और पब्लिक पर्पस जो है वो दो मेन कंटेंटियस इशू थे। पब्लिक पर्पस क्या है ये अभी क्लियर नहीं था, क्या केवल पब्लिक पर्पस वो हो जो कि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी और को अपनी जगह लगाए कि हाँ आप ये प्रोजेक्ट करिए, क्या ये पीपीपीपी के अंतर्गत आता था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर होगा या नहीं होगा, या फिर गवर्नमेंट क्या लीज पे ले सकती है पब्लिक पर्पस, ये इसको डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। और पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन मैंने जैसा बता ही दिया, जैसे कि दिल्ली का कंपैरिजन करके दिल्ली की जमीन और बिहार में जो जमीन है उसमें फर्क जो है मार्केट वैल्यू का कितना है, और जस्ट और फेयर कॉम्पनसेशन क्या होगा, हम बिहार की जमीन को क्या 40 लाख रुपए दे सकते हैं तो क्या वो जस्ट होगा, या फिर दिल्ली की जमीन को 20 लाख में ही खरीदें तो क्या ये जस्ट होगा, ये सारे सवाल जो है राइट टू प्रॉपर्टी में ये सारे कंटेंट्स थे। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो इस वजह से थी क्योंकि ये जो अथॉरिटी ऑफ लॉ जो था, जहां पर गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी ले सकती थी फॉर पब्लिक पर्पस। अब ये पब्लिक पर्पस में जो मेन आइडिया जब हमारा संविधान था तो उसमें मेन आइडिया था एग्रेरियन रिफॉर्म का, जो गोल था। एग्रेरियन रिफॉर्म इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जब गुलाम था तो ब्रिटिशर्स ने जमींदारी जैसा सिस्टम, तालुकदारी सिस्टम, महलवारी, ये सारे सिस्टम जो है वो हमारे देश में रैयतवारी, महलवारी, जमींदारी सिस्टम जो है हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी वजह से जो है, खास करके जमींदारी सिस्टम की वजह से जो है हमारे देश में ऐसे कई सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ फार्मर्स थे जो कि कुछ जो सबसे टॉप पे थे उनके पास जरूरत से ज्यादा अधिक जमीन थी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं दरभंगा राज के कामेश्वर सिंह का, वो राजा थे वहां के, तो जाहिर सी बात है राजा जब वहां के थे तो पूरा दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट था और उससे भी के अलावा भी उनके पास बहुत सारी जमीनें थी। उसको नंबर्स में हम कहें तो बहुत सारे हजारों बीघा जमीन, गांव में कहते हैं बीघा जमीन थी उनके पास, ठीक है। उनको उन्होंने चैलेंज किया। अब इसी गोल को जब हम अचीव करना चाह रहे थे कि एग्रेरियन रिफॉर्म करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी करें, यानी कि हम राजा से, मान लीजिए दरभंगा राज का जो एग्जांपल दिया, उससे मैं जमीन लेके बाकी लोगों को जब बांटूंगी तो उसके लिए ये जो राजा थे ये लोग कोर्ट में जाने लगे कि ये हमारा जो है हनन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का जो है उसके ऊपर अटैक है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये जितने भी लॉ बनाए गए हैं, खास करके जब हमारा जो अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, उससे पहले बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया था, एग्रेरियन रिफॉर्म को लाने के लिए लैंड रिफॉर्म शुरू कर दिया था। वो बिहार उसमें पहला था, मद्रास था, और भी कई सारे स्टेट थे, भोपाल वगैरह, ये 3 स्टेट्स जो है मेजरली थे, ठीक है। ताकि वो अपने जितने भी जमींदार से उनसे जमीन छीन कर नहीं, उनसे अधिग्रहण कर उन्हें वापस छोटे छोटे फार्मर्स को दे दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन चला सके, उसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो जाए, ठीक है। जिसको चैलेंज किया इन सारे राजाओं ने, बड़े बड़े तालुकदार और जमींदार ने कोर्ट में जाके, ठीक है। तो ये सारी जो बैटल्स जो क्रिएट हुए,
एक जगह आप एग्रेरियन रिफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि आप सबका कल्याण करना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप बात करें कि राइट टू प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये दो आई वुड से ऑक्सीमोरन बातें हो गई, यानी कि दो अलग अलग बातें हैं मगर दो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई बातें हैं, उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई। इसने कई सारे बैटल्स क्रिएट किए। एक तो कॉमन सिटीजन का जो है जुडिशरी के साथ पहला बैटल, दूसरा यानी कि जैसे कामेश्वर सिंह जो है वो चैलेंज कर दिए इस लॉ को, और सेकंड बैटल था बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जुडिशरी ने साफ कह दिया कि भाई आप जो भी लॉ बनाओगे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो वॉइड है, आप फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज इट विल बी एन अटैक टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सिंस आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए कोई भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करता है और उसे नल एंड वॉइड भी करार करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो सेकंड बैटल था वो बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव था। ठीक है, द फाइनल बैटल वाज बिटवीन लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका और जो है जुडिशरी के बीच में ही, न्यायपालिका के बीच में ही लड़ाई जो थी इस राइट टू प्रॉपर्टी ने शुरू कर दी थी। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसकी वजह से जो है ये जो ट्विन कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है राइट टू प्रॉपर्टी क्लॉज को कई सारे अमेंडमेंट्स झेलने पड़े। इसमें आप देखोगे जो रेड में है वो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स है जो कि 1951, फोर्थ अमेंडमेंट 1955, सेवेंथ अमेंडमेंट 1956, सेवेंथ अमेंडमेंट 17th अमेंडमेंट 1964 और बहुत सारे और भी अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें जो मेन अमेंडमेंट्स थे वो द फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 का, जिसने मेजर चेंज लेके आया हमारे संविधान के अंदर। और फिर द फोर्थ अमेंडमेंट 1955 का, द 17th अमेंडमेंट था 1956 का, द 25th अमेंडमेंट 1972 का अमेंडमेंट था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो लास्ट अमेंडमेंट था वो 1978 में आया, विच इज कॉल्ड द 44th अमेंडमेंट, विच ऑल टुगेदर डिलेटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f एंड 31 फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जगह एक लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जिसको इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू एन आर्टिकल 300A इन न्यू चैप्टर 4 ऑफ पार्ट जो है 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट रिलेटेड अमेंडमेंट्स टू द प्रॉपर्टी, तो मैं इसको एक ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत सारे केसेस के अगर बारे में बात करूंगी तो वो क्लियर नहीं होगा, तो मैं एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट ने क्या किया, तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आया। फर्स्ट अमेंडमेंट जैसे मैंने पहले कहा, कामेश्वर शर्मा या फिर शंकरी प्रसाद ये लोग कोर्ट में चले गए थे अपने प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारी जमीन नहीं ले सकते आप लोग, हमारी राइट टू प्रॉपर्टी जो है और राइट टू इक्वालिटी इससे हनन हो रहा है हमारा, आप अटैक कर रहे हो हमारे फंडामेंटल राइट पे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ला दिया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में क्या लाया गया कि जो है लेजिस्लेचर जो है कोई भी लॉ पास कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए फॉर पब्लिक पर्पस। वापस यहाँ पे क्या आया, पब्लिक पर्पस, एंड इंट्रोड्यूस, यहाँ पर इन्होंने 9th शेड्यूल को भी इंट्रोड्यूस किया। 9th शेड्यूल क्या है आप लोगों को पता होगा। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है, इंदिरा गांधी के टाइम में ये बनाया गया था इसको और चेंज करके, कि इसमें अगर कोई लॉ चला गया तो वो इट्स नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी उस पर कोई रिव्यू नहीं कर सकती, उसे करार नहीं कर सकती है कि वो इनवैलिड है या वॉइड है। ठीक है, एंड आर्टिकल 31 भी उसके साथ लगाया जो विच सपोर्टेड 9th शेड्यूल और which considered that no law shall be considered void on the ground of inconsistency even with the provision of fundamental right। यानी कि 31 भी इंट्रोड्यूस किया गया 9th शेड्यूल के साथ, अगर ये फंडामेंटल राइट से भी अगर ये क्लैश कर रहा है तब भी वो इनवैलिड नहीं होगा वो लॉ। और इसमें क्या किया उन लोगों ने, बिहार लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है, फोर्थ अमेंडमेंट किया गया 1955 में, which brought about clarity over the term compensation। कंपनसेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुल कंपनसेशन मार्केट वैल्यू का होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई कंपनसेशन जो है जो मार्केट में जिस जमीन की कीमत जितनी होगी आप उतना दीजिए। ठीक है, और फिर जो है जिस दिन आप अधिग्रहण करेंगे उस जमीन का,
एक्वायर करेंगे वो जमीन, डिप्राइव करेंगे उसकी प्रॉपर्टी से उसको, तो उस दिन जो मार्केट वैल्यू होगी उस जमीन की, आप उतना कॉम्पनसेशन सुप्रीम कोर्ट दीजिए। फोर्थ अमेंडमेंट में ये कहा गया। फोर्थ अमेंडमेंट ने बहुत सारे राइट्स जो है लोअर टेनेंट्स के रिकॉग्नाइज किए। इसके एम्बिट के अंदर तुम्हारा आपका महलवारी, जागीरदारी और जो है रैयतवारी भी आई। ये सब ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिक चीजों के बारे में मैं बताती हूँ। 25वां संशोधन जो हुआ था 1971 में हुआ था, 25th अमेंडमेंट। और इसमें जो है एक मेजर चेंज क्या आया, इसमें एक मेजर चेंज ये है कि कॉम्पनसेशन वर्ड को जो है वो अमाउंट में चेंज कर दिया गया, ठीक है। और ये जो है कॉम्पनसेशन वर्ड को जब अमाउंट में चेंज किया गया तो सीधा सीधा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती यहाँ पे केस आता है आज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और उसमें ये कहा गया कि भाई आप अमाउंट जो फिक्स करेंगे वो लेजिस्लेचर जो है अपनी मर्जी से और अपने अंदाजे से नहीं कर सकती है। आपको मार्केट वैल्यू, क्योंकि फोर्थ अमेंडमेंट में डिसाइड कर चुका था सुप्रीम कोर्ट कि आपको मार्केट वैल्यू देना है, तो आप लेजिस्लेचर को ये राइट नहीं दिया है कि कितना आप पैसा अपनी मर्जी से देंगे। तो ये अमाउंट को का जो आइडिया है उसको चैलेंज कर दिया केशवानंद भारती केस में। 25th अमेंडमेंट ही जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी का बिगिनिंग हो गया टुवर्ड्स एन एंड, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म करने की ओर एक बड़ा स्टेप माना गया। अब यहाँ पर जो 25th अमेंडमेंट था वो बेसिकली जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और ये जो अमाउंट और जो कंपनसेशन के ऊपर जो डिबेट चल रहा था उसमें इंदिरा गांधी ने काफी रिएक्शन दिए, ठीक है। और इससे बहुत फर्क पड़ा इंदिरा गांधी को, और उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 39 में जो स्पेसिफाइड लॉ थे उसको, उसके अलावा भी उन्होंने एक और आर्टिकल बना दिया 31(2) के बियॉन्ड, और जो कि रेंज करने गए आर्टिकल 31A टू आर्टिकल 31D, यानी कि 31A B C D। अब इसमें जो है वो शॉर्ट में बता देती हूँ। आर्टिकल 31A जो था कि गवर्नमेंट टू एक्वायर द लैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, अगर कोई भी सरकार गवर्नमेंट जो है अग्रेरियन रिफॉर्म यानी कि कृषि सुधार के लिए काम कर रही है, उस जमीन को वो अधिग्रहण कर सकती है, वो नल एंड वॉइड नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 31B जो कि 9th शेड्यूल को एक कवर देता है कि कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में अगर चला गया तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, जुडिशरी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। 31C इंसर्टेड, ये जो इंपॉर्टेंट था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो था, जो 39B और C में, ये 39B और C क्या था, प्लान ऑफ सोशलिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो था ये डायरेक्टिव था फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स कि भाई आप अपने राज्यों में अगर कोई सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ताकि इक्वालिटी और फ्रीडम को फोस्टर कर सके तो आप कीजिए। और ये आर्टिकल 39B और C जो है उसी का रिफ्लेक्शन था। और इसने, इस लॉ ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने इस लॉ को बनाया और सुप्रीम कर दिया इसे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर कोई भी लॉ अगर which is catering to article directive principle of state policy article 39B and C तो वो और भी नहीं होगा, ठीक है। पार्लियामेंट ने फिर उसके बाद जो 39C को फिर 42nd अमेंडमेंट में उसका स्कोप और बढ़ा दिया 1976 में, by including it that its protection within any law to implement any of the directive principle of state policy in the part 4 of the Indian Constitution। तो जो laws जो है केवल catering to the idea of article 39A and B, वो अब जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए कि नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर लेजिस्लेचर कोई भी रूल बनाती है तो वो रूल नल एंड वॉइड नहीं होगा। और ये क्वेश्चन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस कि इट इज गोइंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू आर्टिकल 14 एंड 19। आर्टिकल 14 क्या था, राइट टू इक्वालिटी, एंड 19 राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये जो है वो चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल के केस में, और ये नलिफाई कर दिया कोर्ट ने इसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है कोशिश की कि इसे यूज कर सके, और इसी जो संशोधन जो 42nd अमेंडमेंट की वजह से, और याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो है इमरजेंसी का टाइम था, और उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही थी, वो न कोर्ट की सुन रही थी न किसी की सुन रही थी, और सारा पावर जो है इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के अंतर्गत था। और ये भी बता दूं मैं कि उस समय जो है इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, ठीक है। तो
और ये जो इक्विटेबल, और आप देखोगे इंदिरा गांधी के रेजिम में ही द वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट इंसर्ट किया गया था। तो वो पॉलिटिकल जो गैमेट है, जो पॉलिटिकल प्ले है, वो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किस तरीके से किया था। ठीक है, तो बट अचानक से हम देखेंगे कि जैसी इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हार गई और जनता गवर्नमेंट आ गई। और यहाँ पर आपका 44th अमेंडमेंट आता है, विच इज द लास्ट थिंग अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। 1978 में जनता गवर्नमेंट ने इस राइट को ही ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि बोला कि बहुत ही कंटेस्टेड है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, इतने सारे केसेस हो गए हैं कि कोर्ट में हर बात पे चैलेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पनसेशन एंड पब्लिक पर्पस, तो इसीलिए इसे हम हटा ही देते हैं। और जो है हम इक्विटेबल रिसोर्सेस ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस जो है वो उसको परस्यू करेंगे। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट वाज द लास्ट राइट्स फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। और इसमें क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट ने रिपील आर्टिकल 19F एंड 31 one article was taken out of part 3 and a separate article was made जो कि 300A था। ठीक है, एक अलग आर्टिकल बनाया गया जो कि ये लीगल राइट बना दिया इसे। अब फंडामेंटल राइट नहीं था, लोग जो है अब कोर्ट में नहीं जा सकते थे और लोग जो है इसे जो है चैलेंज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बस एक मेयर स्टैट्यूटरी लीगल राइट बन के रह गया। तो ये आई होप कि मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिबेट को आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब इसने जो है ये खत्म हो गया, 44th अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट को खत्म तो कर दिया, बट इसने एक नए डिबेट को जन्म दिया कि वेदर राइट टू प्रॉपर्टी जो का जो डिलीट किया गया है, क्या वो सही है, क्या इसे दोबारा लाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जो जितनी भी डिबेट्स थी अब एक नए तौर पे शुरू हो गई है। जैसे कि संजीव अग्रवाल करके हैं, ये एक लॉयर है, इन्होंने 2009 में एक रिट पिटीशन जो है PIL दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। देयर इज अ नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, सॉरी आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, थैंक यू। तो जो नई डिबेट है वो ये है कि क्या हमें रीइंस्टेट करना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज 2005 में आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जो है SEZ का प्रावधान लिखा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें जो है आम लोगों की प्रॉपर्टी को अगर स्टेट चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से, आर्थिक सुधार या डेवलपमेंट के पर्पज से जो विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो सरकार उस भूमि को ले सकती है। तो क्या हमें, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि वाइड स्प्रेड जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ था और कई सारे सोशल मूवमेंट्स ने इसको जन्म दिया। लोगों की जो प्रॉपर्टी का अधिकार जो है, जो गवर्नमेंट जो एमिनेंट डोमेन के अंतर्गत लेती जा रही थी, उसको चैलेंज किया। और इस PIL ने कहा कि SEZ के अंतर्गत या नर्मदा बचाओ आंदोलन जो अब चल रहा है, ये राइट टू प्रॉपर्टी के ना होने की वजह से ही चल रहा है और इसीलिए इसको रीइंस्टेट करना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये जो है इसकी वजह से जो है जितने भी पुराने केस है वो दोबारा खुल जाएंगे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कमेंट्री नहीं दी। आप देखोगे कि जो है बहुत सारे इश्यूज जो है, मैंने आपको बताया कि मैंने यही टॉपिक क्यों चुना आप लोगों के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये इशू जो है वो आज भी अनरिजॉल्व है। हमारे देश में लैंड रिफॉर्म जैसा इशू जो है वो आज भी अनरिजॉल्व है, और इस लैंड रिफॉर्म की इशू ने हमारे देश में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है। ठीक है, जबकि हम there's a lot of noise coming. Okay, thank you. तो ये डेवलपमेंट इश्यूज को जन्म दिया। आज भी हमारे यहाँ एग्रेरियन रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और इसी के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने एक नया बिल भी लेकर आया है जिसको कहते हैं LARR 2014 का बिल। मैं सीधा आऊंगी उस पर, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल जो है, जिसमें जो है कॉम्पनसेशन की बात जो इस गवर्नमेंट ने की है कि आपको जो है कंपनसेशन अर्बन एरिया का अगर होगा तो इट विल बी ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, यानी कि डबल प्राइस पे अर्बन एरिया के अगर किसी की जमीन को हमने लिया तो सरकार उसे मार्केट वैल्यू की डबल प्राइस करेगी। अगर वो रूरल एरिया से उसने लिया जमीन सरकार ने ली है तो वो मार्केट वैल्यू से 4 गुना रेट उसे देगी। ठीक है,
दूसरे इसके अलावा जो एक प्रोविजन SIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, यानी कि इससे भूमि अधिग्रहण से, यानी कि अगर प्रॉपर्टी किसी की ली जाती है उससे किसी का डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जहां से जमीन ली गई है, तो उसको पहले गेज करना होगा, यानी कि वहां के लोगों से पहले बातचीत होगी, अगर वो मानेंगे तभी वहां की जमीन को अधिग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज थे। इसी इशू ने तुम्हारे माओइस्ट मूवमेंट को भी बहुत जगह जन्म दिया, जहां पर लोगों ने जो है कैंगरू कोर्ट्स चलाना शुरू कर दिए, माओइस्ट लोगों ने एंटी स्टेट मूवमेंट्स चलाना शुरू कर दिया, वायलेंट एक्टिविटीज करना शुरू कर दी, रेड कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। तो इसीलिए ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, न केवल इसने लड़ाइयां लगवाई, अगर साधारण भाषा में कहूँ कि पंगे किए, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में या फिर कॉमन भाषा में कहूँ कि एक नागरिकों के बीच में कोर्ट में जाके उसमें पंगे हुए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में हुआ, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स राइट टू प्रॉपर्टी अकेले कर ने क्रिएट किया है। तो इसीलिए ये राइट जो है इसके ऊपर डीपली सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट भी लगातार कोशिश कर रही है कि नए प्लान्स के साथ आए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो दिस गवर्नमेंट इज इंडिवियरिंग फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके लिए वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते हैं। और लोकल तभी होगा, प्रॉपर्टी राइट्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे वहां पर बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं होंगे उस काम के लिए कि कैसे चलना है, तो बिजनेस कैसे फ्लरिश होगा। और इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट था और है आज भी। तो थैंक यू। आई होप कि आप लोगों सबको मैं कोशिश पूरी रही कि आप सभी को बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा सकूं। ओवर टू यू रोहित। आ गया। Thank you, Rapti ma'am. It was nice hearing to you. It was such a comprehensive, in such a comprehensive way you have explained everything to us, and it reflected your profile, that you have been working as a research assistant also, and you have been awarded a doctoral fellowship also, and you have presented so many papers in national and international conferences, and contributed chapters to the edited books. So it was quite evident from your discourse that you are really a scholar. And now I would thank you. And now I would like to ask your friend, Professor Rohit Sharma, to present the vote of thanks. Thank you, Dr. Kohli. I think friends को तो thanks नहीं कहना चाहिए, but formally I have to say thanks. So it is now my pleasant duty to propose a vote of thanks. Well, a warm and graceful afternoon to our speaker of the day, my dear friend, Ms. Rapti, and Madam Principal, Coordinator of IQAC, Madam Sukshma Ahluwalia, and above all, my dear students. It's my privilege to propose this vote of thanks and privilege to acknowledge the contribution of those who worked really very hard to make this event happen and made it also very successful. So I, on behalf of Arya College and the entire fraternity of the institution, thank you all. And first of all, I extend my also most sincere thanks to the Almighty, because without His grace, this event could not have been a resounding success. And an event like this cannot happen overnight, as we all know. The wheel starts rolling a week ago. So we have been very fortunate enough to have a backed up team by IT department, who are always very proactive and dedicated staff who support us to conduct such events every now and then. A special mention is of Mr. Rajinder Singh, who is very sincere and kind fellow, and it is the one to whom we make unapologetic demands at the 11th hour. And he's always there to make the things work well in time, and we cannot say enough thanks to him. So I say thank you, ma'am, principal. Once again, ma'am has joined us. So, and ma'am is the one who always a force, a motivation, a guide, and inspirational spirit to conduct such events. So thank you, ma'am, principal.
Rohitji, I am waiting for the song. So I request Rapti to you kindly fulfill the request made by our worthy principal, ma'am. Over to you, Rapti. Please don't say no. I wasn't mentally prepared for this, but yes, since ma'am has requested, I cannot turn down her request. So क्या गाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट क्योंकि आज संविधान का दिन है तो कुछ देशभक्ति ही अच्छी लगेगी यहाँ. 2-3 लाइनें गुनगुनाऊंगी मैम. शुरू करती. ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है केसरी से, फिल्म केसरी जो अक्षय कुमार की रिलीज मूवी है, उसमें है गाना. एक मिनट में पानी पी. यस. तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. बस इतना ही याद है मुझे. थैंक यू रोहित. थैंक यू. बहुत स्वीट है, बहुत खूब, बहुत स्वीट है. मैम मैंने सुना है आप भी म्यूजिक से हैं. राइट, बिल्कुल ठीक. मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक क्योंकि रोहित ने इतनी तारीफ की है आपकी और कह रहे थे कि बहुत ही एबल रोहित आप ही सब कुछ कर रहे हैं. और रोहित ने मुझे बताया कि आप किस तरीके से एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन और सिंगर भी हैं. तो मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप भी थोड़ा सा कुछ सुनाते हैं. चलिए मैं भी एक लाइन ही सुनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे राप्ती जी कहेंगी. ठीक है. आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. थैंक यू. ब्यूटिफुली सॉन्ग मैम, ब्यूटिफुली सॉन्ग. मुझे लगता है इससे अच्छा किसी भी फंक्शन का जो क्या कहते हैं समापन नहीं हो सकता था. सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल टू काइंडली टर्न ऑन द योर कैमरास वन मोर पिक्चर. And this time, Rapti, you can remove your headphones. Yeah. Just one more pic, just one. Students, kindly अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सारे students. Yeah, thank you. Thank you, Rapti, once again. And I wish that this pandemic once get over, we would love to have you here in person to share your thoughts with our students. Congratulations, Department of Critical Science. Congratulations for holding such successful webinar. Mamta ji, Rohit ji. Thank you, ma'am. Thank you. Congratulations. Thank you, Rapti ji. Thank you, ma'am. Thank you, Rohit. Thank you, ma'am. Pleasure is all mine. Thank you.